Hello students, I am Shreya Sethi and I am your social science teacher. Today we are going to study social science civics chapter number 3 state government of class 7th. In this chapter you are going to learn about the three levels and the three organs of the government of India, about the legislative assembly and council in states, about the governor, chief minister and other members of the state government, and also you are going to learn about the state judiciary. So let's start. In the very starting, there is a conversation given between Aditi and Karan, and this conversation deals with the election of MLA. So let's read. Karan, look at the people coming this way. It looks like a procession. Aditi, this is an election campaign rally. There, look, the MLA of our area, Mr. Virani, is on the vehicle. He represents the common people in the Legislative Assembly. Yes, you're right. The state assembly elections are around the corner. Mr. Virani must have come to ask people's support for the second term. Do you think he will get elected the second time? I don't know. People will consider how much he has done for them during the last 5 years. He does have a chance. He has done good work for the people in the area. He has utilized the MLA fund for welfare of women and children in our area. He has also improved the condition of government school in our area. He will have people's support for the work he has done. Yes, let's see people vote for this deserving candidate who will represent them well. Now, this conversation between Aditi and Karan revolves around the election of state legislative assembly, that is for MLA, and the role of an MLA. So let us learn more about them in the context of the structure of state government. Now we are going to deal with, or we are going to learn the state government structure. So let's start. State government. The state government exercises its power through three organs: the executive, legislature, and the judiciary. So बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं: स्टेट द एग्जीक्यूटिव्स, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, राइट. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वन बाय वन कि किसके कितने कौन क्या पावर होल्ड करता है. ठीक है. The executive arm of the government implements the law and look after the daily administration of the state. एग्जीक्यूटिव्स का क्या रोल होता है? ये लॉ को इन्फोर्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और डेली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की डेली एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हैं, राइट. इट कंप्राइजेज ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इसके अंडर कौन कौन होता है? फर्स्ट इज गवर्नर, सेकेंड इज चीफ मिनिस्टर एंड थर्ड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये इसके मेंबर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज the legislature. The legislature consists of legislative assembly and legislative council. अब legislature में दो bodies होती हैं. First is legislative assembly and second one is legislative council. It makes law on subjects like health, police, education, transport, land policies, etc. Now, legislature का काम क्या होता है? Law फ्रेम करना, लॉ बनाना. दे मेक्स द लॉ. और ये लॉज जो रूल्स बनाते हैं वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकते हैं, पुलिस के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज जुडिशरी. नाउ जुडिशरी इज हेडेड बाय द हाई कोर्ट. जुडिशरी में हेड कौन होता है? कोर्ट, हाई कोर्ट होती है. which settles the civil and criminal dispute in the state. जो सिविल लोगों के मतलब कॉमन लोगों की डिस्प्यूट्स और स्टेट्स के बीच की डिस्प्यूट, लड़ाई जो होती है उसको सेटल करवाती है. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं स्टेट की, और जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है
ये ध्यान रखना कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और लॉ बनाने का काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर की भी दो बॉडीज़ होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर उसके बाद जुडिशरी, जो लॉ बनाई जा रही है और अगर वो लॉ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कौन ध्यान रखेगा? जुडिशरी। उसमें वो लोग सेटल करेंगे और अगर पनिशेबल ऑफेंस होगा तो पनिशमेंट देगी कोर्ट, राइट? आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेट लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। सो स्टेट लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस वन, legislative assembly. The legislative assembly is responsible for making law and legislature of state in India. ये responsible होते हैं law making के लिए. All Indian states are divided into the number of areas depending upon the size of its population. These divisions are called constituencies. इंडिया के स्टेट्स को और फर्दर डिवाइड किया जाता है उनकी साइज़, पॉपुलेशन की साइज़ के बेसिस पे, और उस हिसाब से इलेक्शंस लड़े जाते हैं। जैसे कलर्ड सेक्शन आपको दिख रहा है ना, तो इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। ऐसे इस तरीके से उन्हें डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसे डिवाइड किया जाता है। पीपल ऑफ ईच constituency elect one member of legislative assembly or an MLA to represent them in the state legislative assembly. अब जनरली सपोज ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, अब इस स्टेट को फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, राइट? सपोज दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये फर्स्ट एरिया है। अब इस एरिया के जो लोग हैं वो एक पर्सन को एज अ एमएलए इलेक्ट करते हैं। सेकेंड एरिया में भी एक एमएलए को इलेक्ट किया जाता है, थर्ड में भी एमएलए इलेक्ट किया जाता है, और ये कौन करता है? लोग करते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एमएलए, member of legislative assembly. The MLAs belong to different political parties, are elected directly by people based on universal adult franchise. और लोग कैसे इलेक्ट करते हैं? बाय वोटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर। ऑल द MLAs टुगेदर फॉर्म अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब सिंस मैंने आपको बताया था कि स्टेट बहुत सारे MLAs जब गैदर होते हैं, है ना, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर बनती है, राइट? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं एक स्टेट में, और फिर वो सब मिलकर क्या करते हैं? एक स्टेट लेजिस्लेचर क्रिएट करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ MLA and the number is more than 50% of total number of MLA in the legislative assembly forms the ruling party. Now suppose ये एक स्टेट है, राइट? बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सपोज 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से क्या होगा? एक MLA इलेक्ट किया जाएगा, और ये कौन करेगा? कॉमन लोग वोट देकर, ठीक है? तो टोटल कितने MLAs हैं हमारे पास? 6, राइट? अब ये 6 MLA जो हैं ये डिफरेंट पार्टीज से बिलोंग करते हैं। सपोज फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम कांग्रेस, सेकेंड वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम कांग्रेस, थर्ड इज़ फ्रॉम BJP, sixth is from BJP, this fourth one is from Aam Aadmi Party, and other is from BJP. So majority किसके पास है? मैंने 2 कांग्रेस के लिए हैं, 3 BJP के, और एक जो है वो आम आदमी पार्टी का है। तो टोटल 6 हो गए, राइट? तो मेजॉरिटी ऑफ MLAs कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? BJP से। तो अब
रूलिंग पार्टी कौन बनेगी? बीजेपी, क्योंकि रूलिंग पार्टी में ये जो 3 मेंबर्स हैं, ये तीनों मेंबर्स क्या है? बीजेपी। मैक्सिमम कितने हैं? सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। तो फॉर्म कौन करेगी? बीजेपी फॉर्म करेगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि 50% से ज़्यादा अगर एमएलए, यहाँ पे तो 6 थे, राइट, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एमएलए ज़्यादा होते हैं, तो 50% से अगर ज़्यादा एमएलए किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो क्या होगी? रूलिंग पार्टी कहलाएगी। Let us understand this through the example of Odisha, an eastern state of India. In May 2019, elections were conducted in Odisha for its legislative assembly seat. Based on the constituency map of Odisha, the the data provided fill in the following details. First, total number of constituencies in Odisha. Now, number of constituency. The map is given. Now, look at this. जब आप अपनी बुक में क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ़ सीट्स लिखी हुई हैं, राइट, 112, 23, 9, 2 एंड 0, राइट। जब हम इसे टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकल जाएगी, ठीक है। दैन जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी उतने एमएलए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ़ एमएलए, तो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी उतने एमएलए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिकल पार्टी विथ मैक्सिमम एमएलएज। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके मैक्सिमम एमएलएज हैं। अब ग्रीन सेक्शन सिंस ज़्यादा दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा पोर्शन ग्रीन है, इट मीन्स कि ग्रीन का मैक्सिमम एमएलएज होंगे। अब ग्रीन क्या है यहाँ पे? बीजेडी पार्टी, दैट इज़ 112 मेंबर्स, 112 पार्टीज मेंबर्स होंगे। Then percentage of MLAs to total MLAs, that is 77% approximately निकलेगा। Then political party with no MLA, अब वो political party जिसका कोई MLA नहीं है, that is the last one which is mentioned as 0, right। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। Next, in Odisha assembly elections, the BJD had a clear majority. सबसे ज़्यादा majority किसकी थी? BJD, that is 112. To form the government, it is needed more than 76 seats. मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट का अगर 50% देखें तो 70 सीट्स बीजेडी पार्टी के पास होनी चाहिए। एंड दिस criterion was made by BJD. Therefore, it went on to form the government in Odisha with Mr. Naveen Patnaik as the chief minister. अब सिंस सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जो ग्रीन सेक्शन है वो बीजेडी पार्टी का है, तो रूलिंग पार्टी कौन बनेगी? बीजेडी पार्टी, right। The state legislature may be unicameral or bicameral. The states with bicameral legislature have 2 houses, that is legislative council and legislative assembly. Now अब जनरली ये जो मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, लेकिन ये सारे स्टेट्स में नहीं होती हैं। कुछ स्टेट्स में इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और कुछ स्टेट्स में सिंगल होती है। तो जहाँ पे ये 2 पार्ट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसे बाय कैमरल बोलते हैं, बाय कैमरल। एंड यूनिकैमरल मीन्स सिंगल हाउस। बाय कैमरल, अब हिंदी में लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं? विधान परिषद, विधान परिषद। और लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान सभा। हिंदी में आप सभी ने नाम सुने होंगे, विधान सभा एंड विधान परिषद। ये हर स्टेट में नहीं होती है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो हर स्टेट में नहीं होती है, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में होती है।
ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है। The unicameral state legislature has one house, that is the Legislative Assembly, Vidhan Sabha. States such as Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh have bicameral legislatures. So आपको समझ में आ गया होगा कि लेजिस्लेचर जो है वो दो पार्ट्स में होता है। कहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं और कहीं पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, यहाँ पर क्या है, ये यूनिकैमरल है, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है।